Hello students, welcome back to fourth session on Introduction to Trigonometry. In this video, we'll be doing exercise 8.2, wherein we'll be discussing trigonometric ratios of some specific angles. So starting with angle 45 degrees. For this, consider a right angled isosceles triangle ABC. Name the triangle as ABC, where angle B will be equal to 90 degrees and AB is equal to BC. यहाँ पे हमने एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल माना है इसको, और जिसमें ए बी और बी सी दोनों साइड्स इक्वल, और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड है तो बाकी दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल ही. सो अगर एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे बोथ ऑफ देम विल बी 45 डिग्रीज ईच. सो अगर ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है तो हमने इसको दोनों को के इक्वल एज्यूम कर लिया. So let AB is equal to BC is equal to K. So AB is equal to K and BC is also equal to K. Now since triangle ABC is a right angle triangle, so by Pythagoras theorem, so in triangle ABC, AB का square plus BC का square will be equal to AC का square. This is by Pythagoras theorem. AB, this is K square, BC, this is again K square is equal to AC square. So that means 2K square is equal to AC square. So AC square. So root 2K whole square will be equal to AC square. Square and square will cancel out. So you will get AC is equal to under root of 2K. अब AC की वैल्यू आ गई यहाँ पे अंडर रूट 2K. तो अगर हम 45 डिग्रीज के हिसाब से बाकी अब रेशियोज को निकाल के देखें तो सबसे पहले साइन 45. सपोज अगर हम यहाँ पे बेस एंगल ए ले रहे हैं तो साइन 45, साइन इज P by H. सो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए परपेंडिकुलर विल बी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी AC. सो दैट मीन्स BC विच इज एज्यूम्ड एज K and AC is equal to root 2K. So you will get sin 45 is equal to 1 by root 2. Clear? Similarly, value of cos 45 degrees. Cos क्या होता है? Curly brown hair. So it will be base upon hypotenuse. Base will be AB and hypotenuse is AC. So AB is K, AC is root 2K. So it will again be 1 by root 2. Similarly, if you find the value of tan 45 degrees, tan is perpendicular upon base. So it will be BC upon AB. So both of them are equal to K. So K upon K will be equal to 1. So sin 45 is 1 by root 2, cos 45 is again 1 by root 2, tan 45 is 1. So अगर हमें sin 45 पता है तो हम यहाँ से cosec 45 निकाल सकते हैं क्योंकि cosec 45 डिग्रीज उसका रेसिप्रोकल होता है. So cosec 45 डिग्रीज will be root 2. ऐसे ही अगर हम यहाँ से cos 45 से देखें तो sec 45 डिग्रीज will be reciprocal of cos 45 which is root 2. And the last ratio cot 45 degrees will be the reciprocal of tan 45 which is 1. तो अब ये 45 डिग्रीज के हिसाब से हमने सारी की सारी 6 रेशियोज की वैल्यू निकालनी. 6 रेशियोज की वैल्यू निकालनी. सिमिलरली अगर हम आगे देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जैसे हमने 45 डिग्रीज का निकाला ऐसे 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज का अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Consider triangle ABC. Consider an equilateral triangle. Consider an equilateral triangle ABC. और since ABC is an equilateral triangle, therefore AB will be equal to BC will be equal to CA. So let us assume that all the sides are equal to K. Let AB is equal to BC is equal to CA is equal to K. So AB, AC and BC, all of the three sides will be equal to K.
अब यहां पे हमने क्या किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पे हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया साइड BC के ऊपर। तो अगर ये 90 डिग्री हमने ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि AB जो है, अच्छा, एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्रीज, और साथ में AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल है ही, so each equal to K, and the last side AD is equal to AD, which is common. So by RHS congruency, triangle ABD will be congruent to triangle ACD, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स जो BD है दैट विल बी इक्वल टू CD, because corresponding parts of congruent triangles are equal, and also angle BAD will be equal to angle CAD, again same reason by CPCT। अब क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री था और ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज ईच। BC पूरा K था, तो ये आधा पार्ट इसका K/2 आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी K/2। सो अब हम पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABD में लगाएंगे और सबसे पहले AD की वैल्यू निकालते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल ABD क्या बनेगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AD ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है, BD की वैल्यू कितनी है K/2, तो K/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB विच इज K, सो इट विल बी K स्क्वायर। सो AD स्क्वायर विल बी K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर बाय 4। K स्क्वायर बाय 4 राइट साइड हो जाएगा तो माइनस का हो गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 3K स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू √3K अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, AD स्क्वायर एंड √3K अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यू विल गेट AD इज इक्वल टू √3K बाय 2। ये AD की वैल्यू आ गई, सो AD की वैल्यू विल बी √3K अपॉन 2। अब रेशियोज निकाल लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं साइन 30। साइन 30 क्या होगा, साइन 30 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P बाय सम पीपल हैव, तो 30 डिग्रीज के हिसाब से परपेंडिकुलर विल बी BD एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। BD की वैल्यू कितनी है K/2 अपॉन AB इज K, सो साइन 30 विल बी K से K कैंसिल आउट, साइन 30 आ जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर हम cos 30 देखें, cos 30 कितना आएगा, cos होता है B/H, 30 डिग्रीज के हिसाब से बेस विल बी AD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB, सो इट विल बी AD की वैल्यू √3K/2 अपॉन AB इज K से K कैंसिल, तो इट विल बी √3/2, तो cos 30 की वैल्यू इज √3/2। ऐसे ही tan 30 अगर हम देखेंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 डिग्रीज के हिसाब से परपेंडिकुलर विल बी दी ऑपोजिट साइड विच इज BD अपॉन AD, perpendicular upon base. So perpendicular is K/2 and base AD is √3K/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, K से K, तो इट विल बी 1/√3। ऐसे ही अगर हमें साइन 30 पता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30, सो इट विल बी 2। ऐसे ही कॉस 30 पता है तो हम यहाँ से सेक 30 निकाल सकते हैं, विच विल बी 2 अपॉन √3।
और tan 30 पता है तो हम cot 30 डिग्रीज निकाल सकते हैं. सो इट विल बी √3. ये अभी 30 डिग्रीज का निकाला. ऐसे अगर हम 60 डिग्रीज का निकाले तो sin 60 कितना आएगा? sin 60 हो जाएगा p/h. अब 60 डिग्रीज के हिसाब से p/h देखेंगे तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर इज AD and hypotenuse will be AB. So AD is √3 k/2 and AB is k. K से k cancel तो you will be left with √3/2. So that means sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. ऐसे अगर हम cos 60 देखें तो cos 60 b/h. So that will be BD upon hypotenuse is AB. BD की वैल्यू इज k/2 upon AB is k. So it will be 1/2. ऐसे हम tan निकाल सकते हैं. tan हम यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है. So tan 60 is perpendicular upon base. So perpendicular is AD upon base will be BD. So value of AD is √3 k/2 and BD is k/2. So it will be √3. अब अगर 60 वाली पता है sin 60 तो cosec 60 कितना होगा? इसका उल्टा cosec 60 डिग्री विल बी 2/√3. cos 60 पता है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल विल बी sec 60 विच इज 2 रेसिप्रोकल इसका. इसी tan 60 पता है तो cot 60 डिग्रीज. सो दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 विच इज 1/√3. सो इस तरीके से हम 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो पहले हमने 45 डिग्रीज सीखा, अब 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज. तो दो एंगल्स और हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री. बट लॉजिकली अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल के अंदर 0 डिग्री और 90 डिग्री होते ही नहीं. ठीक है, अगर हम मतलब बाकी अगर एंगल्स को देखें तो अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो दूसरा वाला एंगल कैन नॉट बी 90 डिग्री, क्योंकि अगर वो 90 हुआ तो दो का सम ही 180 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें कि अगर एक ट्राइंगल ABC है और इसमें हम पॉइंट A को B के पास लेके जा रहे हैं, जैसे पॉइंट A यहाँ पे था, हम इसको इसके पास लेके जा रहे हैं, तो अब किसी पॉइंट पे आगे क्या होगा कि जब ये इसके बहुत पास आता जाएगा तो इट विल बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री. जब B और A कोइंसाइड कर जाएंगे तो एंगल A विल बिकम 90 डिग्री, ऑल्दो ट्राइंगल नहीं बनेगा उस टाइम पे. तो अगर सपोज ये बिल्कुल इसके पास आ गया, ये पॉइंट सॉरी बिल्कुल इसके पास आ गया B के, सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहें सारे एंगल्स की वैल्यू, सपोज पहले हम 90 डिग्री के हिसाब से निकाल रहे हैं या 0 डिग्री कर रहे थे, पहले 0 डिग्री साइन 0 डिग्री. तो अगर ये 90 डिग्री मान रहे हैं और ये भी 90 है तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा? दिस विल बी 0 डिग्री. अगर ये बहुत पास आ गया, वैसे तो इस फिगर में होना चाहिए बट वहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाएंगे. तो मान लिया कि ये ए बी की जो लेंथ है दैट इज ऑलमोस्ट 0, बहुत ही पास है ये पॉइंट्स, इनकी लेंथ जो है दैट इज ऑलमोस्ट 0. तो साइन 0 कितना होगा? अब ये एंगल 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब अगर ये 90 आ रहा है तो दैट मीन्स दिस विल बी 0 डिग्री. तो साइन 0 कितना होगा? साइन इज p/h. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आएगा AB अपॉन AC. सो AB तो ऑलमोस्ट 0 है, तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0. अब अगर हम cos 0 देखें, cos 0 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अब इसके हिसाब से बेस कितना हो गया? बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. अब जब इस वाली फिगर में देखेंगे, अगर ये बहुत पास आ गए, A और B बिल्कुल ही पास में आ रहे हैं, तो AC और BC जो है दैट विल कोइंसाइड, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है AC एंड BC विल कोइंसाइड. सो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो ये इतना पास हम आ जाते हैं यहाँ पे कि AC और BC जो है वो इक्वल हो जाते हैं और AB जो है वो 0 हो जाता है. इतना पास है, ऑलमोस्ट 0. सो BC और AC अगर बराबर आ रहे हैं तो दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो cos 0 की वैल्यू विल बी 1. एंड tan 0 degree will be perpendicular upon base, so that will be AB upon base BC and this will again be 0 degree. और क्योंकि साइन 0 डिग्री है तो इसका मतलब cosec 0 तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो 1/0 हो जाएगा. सो क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लिखते हैं cosec 0 will be not defined. 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 0
Similarly, value of sec 0 will be reciprocal of cos 0, which is 1, and tan 0 का reciprocal cot 0 will be reciprocal of 0, तो अपॉन में आ जाएगा, so that will again be not defined. ऐसे अगर हम 90 डिग्रीज के बारे में बात करें तो साइन 90 कितना होगा? अब 90 के हिसाब से परपेंडिकुलर विल बी BC and hypotenuse is AC, and since both of them are equal, AC and BC equal होंगे क्योंकि बहुत ही पास हैं, तो इसका मतलब साइन 90 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 90 देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC, सिंस AB इज 0 तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा, और ऐसे tan 90 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB. अब डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो डिफाइन नहीं कर सकते. साइन 90 पता है तो cosec 90 डिग्रीज will be reciprocal of 1, which is 1. cos 90 का reciprocal, तो इसका मतलब sec 90 will be not defined, and tan 90 का reciprocal cot 90. cot 90 क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC. अब AB 0 है और ये नॉन जीरो, तो दैट मीन्स cot 90 will be 0. तो इस तरीके से हम 0 और 90 वाली वैल्यूज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ये जो भी वैल्यूज हमने निकाली है ये हमने एक टैबुलर फॉर्म में लिख ली. ये टैबुलर फॉर्म में ये हमें याद करना. तो ये सारी वैल्यू साइन की है, साइन की, कॉस, tan, तो दैट मीन्स साइन 0 डिग्री विल बी 0, साइन 30 डिग्रीज विल बी 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1. तो ये टेबल से वैल्यूज हमें पुट करके डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करना है, तो इसमें बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं, डायरेक्टली बस वैल्यूज को यूज करेंगे. So starting with the exercise 8.2, question number 1. Evaluate the value of sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. सिंपल टेबल से वैल्यूज ही हमें रेफर करनी. sin 60 की वैल्यू टेबल से साथ साथ देखोगे तो sin 60 इज √3/2, cos 30 इज अगेन √3/2, sin 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज 1/2. आप एक काम कर सकते हो कि टेबल को लिख लो ताकि वैल्यूज रेफर कर सको. उसमें से बार बार पेज टर्न करना तो मुश्किल रहेगा, आप एक बार नोट कर सकते हो उसको. तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 विल बी 3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1/4. एलसीएम लेंगे 4, सो इट विल बी 3 प्लस 1/4, 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1. इसका आंसर कितना आया? 1. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 2 times tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. So 2 tan 45 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो tan 45 is 1 और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर. सिमिलरली cos 30 की वैल्यू इज √3 अपॉन 2, इसका स्क्वायर, एंड sin 60 कितना है? अगेन √3/2 का स्क्वायर. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर विल बी 2 into 1 का स्क्वायर विच इज फाइनल रिजल्ट विल बी 2. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, cos 45 degrees upon sec 30 degrees plus cosec 30 degrees. So value of cos 45 is 1 upon √2. sec 30 क्या है? sec 30 is reciprocal of cos 30 degrees. अगर sec 30 की वैल्यू ऐसे याद नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं. तो cos 30 is √3/2. So that means sec 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. sec 30 will be 2 upon √3. तो यहाँ आ जाएगा 2 upon √3 और cosec 30 is रेसिप्रोकल ऑफ sin 30, तो यहाँ पे आएगा 2. अब एलसीएम लेते हैं. 1 upon √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3. अब अगर ऐसे 4 लेवल्स में आता है तो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले दोनों आपस में होते हैं. तो क्या मिलेगा? 1 into √3
दिस इज √3 डिवाइडेड बाय √2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√2 प्लस 2√6 √2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस 2√6। सो अब इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो छोड़ नहीं सकते, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा √6 प्लस √2 या फिर √2 प्लस √6, एक ही बात है। बट अगर आप बड़ी वाली टर्म को पहले लिख दो तो रैशनलाइजेशन आसान हो जाती है, ये साइन का प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमने इसको यहाँ पे √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बनेगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √6, सो दिस इज 3√2 माइनस √3 इंटू √2 इज √6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so 3√2 minus √6 divided by 6 minus 2 is 4, 4 into 2 is 8, this is the answer. Fourth part, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 is 1, cosec 60 ये sin 60 का रेसिप्रोकल है, sin 60 क्योंकि √3/2 होता है, so this will be 2/√3। ऐसे ही sec 30 it is again 2/√3, cos 60 is 1/2 and cot 45 is 1। एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम आया 2√3, 2 और √3 एलसीएम 2√3 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2√3 और यहाँ पे √3 आ गया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 into 2 is 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 2√3, ऊपर क्या आएगा तो 2 2s are 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पे 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। सो अगर सेम सी टर्म्स आ रही हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे सेम फॉर्म में ही हो ताकि रैशनलाइजेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो 3√3 माइनस 4, इसी को हमने रीराइट कर दिया 3√3 प्लस 4। अब रैशनलाइज करने के लिए अब क्योंकि नीचे प्लस वाला आ रहा है, सो इसको माइनस वाले से 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गई और डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी बन गई। पहले डिनोमिनेटर देखते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में a माइनस बी ए माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 2 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। सो ये क्या बनेगा 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 विच इज 11। तो ये इसका आंसर है। डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं छोड़ना, उसको रैशनलाइज करेंगे। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू टेबल से 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स sec 30, sec 30 कितना होगा, sec 30 होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 मतलब 1, इसका स्क्वायर हो गया। sin 30 इज 1/2 इसका स्क्वायर और cos 30 इज √3/2 इसका स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा 5, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो ये आ गया 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, ये 2/√3 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस
3/4। अब ऊपर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12। सो अगर यहाँ 4 है, पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 15। यहाँ हो गया 16 इंटू 4, 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1/4, 3/4। दिस विल बी एलसीएम 4 आ गया, ऊपर आ गया 1 + 3, 1 + 3। तो ये हो गया 15 + 64 माइनस 12, दिस इज 67 अपॉन 12। और 4/4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। ये 4/4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पे 67 अपॉन 12। क्लियर? कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब इन चारों में से किसके इक्वल है ये बताना। सो पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 tan 30, सो दिस इज 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करिए। सो दिस इज 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, 2/√3। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आएगा 3 + 1, सो दिस इज 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अभी बताया था कि अगर ऐसे 4 लेवल्स में आ रहा हो तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 = 6 अपॉन 4√3। ये हो गया कैंसिल 3 पे, और ये कैंसिल हो गया 2 पे। तो ये बचा 3/2√3। अगर हम इसको रैशनलाइज करें, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 विल बी 3, और ये ऊपर वाले 3 से कैंसिल आउट। सो फाइनल रिजल्ट विल बी √3/2। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया सॉल्व करके √3/2, और सिंपल वैल्यूज ही पुट की। अब इन चारों ऑप्शंस में से चेक करेंगे कि किसका आंसर √3/2 आता है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यही वैसे हमारा आंसर है। लेकिन हम बाकी भी चेक करके देख लेते हैं। तो cos 60 टेबल के अकॉर्डिंग इट इज 1/2, tan 60 इज √3, एंड sin 30 इज अगेन 1/2। तो इन चारों में से कौन सा इक्वल है? sin 60। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्रीज एंड अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। सो टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। तो tan 45 इज 1, इसका स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। सो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 0/2 विच इज 0, 0, 0, 0। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। बाकी अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि बाकी 0 के इक्वल नहीं आ रहे। tan 90, दिस इज नॉट डिफाइंड, टेबल से मैच करोगे तो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, 1। और ये sin 45 इज 1/√2, तो आंसर विल बी 0। ये मैच हो रहा है। कमिंग टू दी थर्ड पार्ट, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to। यहाँ पे अब हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ से अभी हम क्लास 10th के लेवल पे वैल्यूज अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे। वैल्यूज जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो हम हिट पुट करके देखते हैं कि किससे ट्रू मिल रहा है। सो पहले हम 0 डिग्री का ही ले रहे हैं। इफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा? साइन 2 इंटू 0 डिग्री विच इज साइन 0 डिग्री, और टेबल के अकॉर्डिंग साइन 0 0 होता है। और अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड इज 2 sin a, मतलब 2 इंटू साइन 0 डिग्री विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज 0। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 0 आ रही है, तो मैथ्स तो हो गया, आंसर तो हमारा 0 डिग्री। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। अगर हम ये ले लें, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, क्या पता इस पर ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी चेक करना जरूरी है हमारे लिए। अगर ये 30 डिग्रीज लिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्रीज विच इज साइन 60 डिग्रीज, एंड टेबल के अकॉर्डिंग साइन 60 इज √3/2। और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो 2 साइन 30 डिग्रीज विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय
1/2 विच इज 1। तो ये 1 आ रहा है, ये √3/2 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड वाला करके देख लेते हैं। इफ ए अगर 45 डिग्रीज माना तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी साइन 2 into 45 degrees, which is sine 90 degrees, and which is equal to 1. And right hand side is 2 sine 45 degrees, 2 multiplied by 1 upon √2, which is √2। तो ये आ गया। और ऐसे ही बाकी 60 डिग्रीज पे वैसे तो वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग हमें नहीं पता, बट क्योंकि 0 डिग्री हमारा आंसर मैच हो चुका है तो इसी को फाइनल आंसर मान लेते हैं। साइन 60 पे भी मैच नहीं करता है। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 degrees upon 1 minus tan square 30। सो वैल्यू पुट करेंगे, 2 tan 30 इज 1 अपॉन √3, और यहाँ हो गया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सो इट विल बी 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। सो 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इज 2/3। ये हो जाएगा 2 3 6 अपॉन 2√3, ये कैंसिल आउट हो गया 3 पे, 3 अपॉन √3, दिस इज √3। ये √3 आ रहा है, मैच करके देखना है कि क्या √3 हमें कहाँ से मिलेगा। cos 60 is 1/2, sin 60 is √3/2, tan 60 is √3 and sin 30 is 1/2। So the answer will be C, tan 60 degrees। वही √3 के मैच हो गए, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3। If tan A plus B equal to √3 and tan A minus B equal to 1/√3 and the value of A plus B is between 0 degree and 90 degree, also it is given that angle A is greater than angle B, find the values of angle A and angle B। So अगर हमें पता है कि tan A plus B √3 है, so हम यहाँ पे ये देखेंगे कि tan √3 होता कब है टेबल के अकॉर्डिंग। सो टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि tan √3 होता है tan 60 डिग्रीज पे। अब tan A plus B tan 60 के इक्वल आ गया, tan और tan कटेगा नहीं, यहाँ लिखते हैं ऑन कंपैरिजन। कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें काटना नहीं है, काटते कब है जब मल्टीप्लीकेशन में होता। तो ऑन कंपैरिजन यू विल गेट A plus B is equal to 60 degrees। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगला क्या दे रखा है हमें, सेकंड कंडीशन इज tan A minus B is 1 upon √3 एंड टेबल के अकॉर्डिंग tan 1/√3 कब होता है, चेक करो, दिस इज tan 30 degrees। So again on comparison you will get A minus B is equal to 30 degrees। This is the second equation। और अब दो इक्वेशंस आ गई, अब हम इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन ही तो बनी है अब ये। सो A plus B is 60, A minus B is 30। B और B का कोफिशिएंट एक प्लस है एक माइनस है, सो विल ऐड both the equations। On adding you will get B and minus B will cancel out, so 2A will be equal to 90 degrees and angle A will be equal to 45 degrees। और अगर ये 45 आ गया, so put A is equal to 45 degrees in equation number 1। So 45 plus B is 60 degrees and angle B will be equal to 15 degrees। So B is 15 and A is 45 degrees। This is the answer। याद रखना कि ये काटना नहीं है, हमेशा ऑन कंपैरिजन ही लिखना है, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब क्योंकि यहाँ पे साइन A प्लस बी दे रखा है और चेक करना है साइन A प्लस साइन बी के इक्वल, तो वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सो है तो ये फॉल्स, लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो A और B की वैल्यूज लेके वेरीफाई कर सकते हो। सो हमने लेट अगर कर लिया A is equal to B is equal to, let us suppose it is 30 degrees। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये हो जाएगा साइन 30 plus 30 which is sin 60 which is √3/2
और अगर हम राइट हैंड साइड को मैच करके देखें तो ये आएगा साइन 30 प्लस साइन 30. सो साइन 30 इज 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन में मैच नहीं हो रहा, बाकियों में मैच हो जाएगा. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर एंगल ऐसे एडिशन में दे रखा हो तो हम दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. सिर्फ साइन के साथ नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ ये रूल होता है. तो ये इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. कमिंग टू द सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. हमें ये चेक करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें टेबल के अकॉर्डिंग, उसी में से क्रॉप किया मैंने. साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2. अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो दिस इज 0.5 और साइन 45 इज 1/√2. सो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.7. √3/2, √3 की वैल्यू 1.73 अप्रॉक्सीमेटली होता है. सो इट विल बी 0.86 और ये 1. तो यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ के 0 से 30 हुआ, फिर 30 से 45 हुआ, तो 45 से 60 एंड देन 60 से 90. तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है. 0 से पहले 0.5 हुआ, फिर 0.5 से 0.7, 0.86, देन 1. तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. दिस विल बी ट्रू. थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो थीटा के बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. चेक कर लेते हैं. सो ये अभी √3/2 हमने देखा 0.86 है, दिस इज 0.7, 0.5 एंड 0. तो एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90 एंगल जैसे जैसे बढ़ा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है. यहाँ तो 1 से 0.86 हो गई या फिर 0.7 हो गई. यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है. बट यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीजेस. थीटा के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. नो. अभी हमें यहाँ पे अगर टेबल से मैच करके देखोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्रीज पे ही इक्वल होते हैं. बाकियों पे इन दोनों की वैल्यूज आप टेबल से मैच करके चेक करो, बाकियों पे वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है. अगर हम साइन 0 देखें तो वो 0 है और कॉस 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1. तो वैल्यूज डिफरेंट है. सिर्फ एक 45 डिग्रीज पे दोनों की वैल्यूज सेम होती है. तो यहाँ पे लिखे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सो दिस स्टेटमेंट विल बी false. And the last part is cot A is not defined for A is equal to 0 degree. तो cot 0 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो वो क्या आएगा? cot 0 is not defined. और यही चीज यहाँ पे लिखी है कि cot A is not defined for A is equal to 0 degree. So this statement will be true. So with this we have completed exercise 8.2. Thank you so much.